learning classes. Today is very interesting. Today topic is very interesting. So in this video we will see one important topic from a chapter, that is electric capacitance and capacitor. And today topic will be parallel plate capacitor. So we have to focus on its parallel plate capacitor. If you guys enjoy this video, like this video, share this video, and don't forget to subscribe. But as you know, before I start my class, I always have to recall all the previous topic, what we have learned in previous class. In previous class, we are discussing capacitance, conductor, insulator. So, from that topic, we have derived the formula. We have just seen that previous video. So, if you learn the concept, that topic, just go to the description box and click the link. Now discuss parallel plate capacitor. Parallel plate capacitor otherwise name is capacitor or condenser. So capacitor का definition क्या है, पहले समझते हैं capacitor का definition क्या है, then discuss parallel plate capacitor क्या है. First discuss capacitor क्या है और capacity क्या है. Capacitor is an electrical component or device which store some amount of charge. कैपेसिटर क्या है? कैपेसिटर एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट और एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो स्टोर करता है सम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, देन इज कॉल्ड एज कैपेसिटर. और इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन स्मॉलर स्पेस मीन्स again repeated this definition. Capacitor is an electrical component और electrical device means capacitor एक electrical device है जो क्या करता है, which store करता है. क्या स्टोर करता है? some amount of energy, some amount of charge और इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन स्मॉलर स्पेस में कुछ डिस्टेंस रहेगा. इन स्मॉलर स्पेस का मतलब ये है कुछ डिस्टेंस रहेगा. सो देन कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या है, अभी डिस्कस कर रहा था. कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या है? C इक्वल टू Q बाई V. Q मीन्स चार्ज, V मीन्स पोटेंशियल. V consider positive to negative. Positive to negative means we consider charge or otherwise distance. Then positive to negative means higher potential to lower potential. So C equal to Q by V. Formula C equal to Q by V. Q is the charge, V is the potential difference. Then C का unit है farad, Q का unit coulomb, V का unit volt. देन डिस्कस प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, जो सेकेंड स्टेप है. पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का पहला स्टेप है कैपेसिटर और कंडेंसर, जो कैपेसिटी क्या है. देन डिस्कस सेकेंड मीन्स प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर. प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर मीन्स क्या है, द प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल प्लेट में दो प्लेट फेस टू फेस रहेगा, उसको बोलोगे पैरेलल प्लेट. मीन्स फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर हूँ, यहाँ पर और भी कोई खड़ा है, वो मैं उसको, वो मेरे को देख रहे हो at a time, then is called as क्या, is called as parallel means face to face. So then the principle of parallel plate capacitor is that one of the plate plus Q, other plate minus Q, then connected to the earth. Earth connected means earth always considered to the positive charges. Means earth always considered to the negative charges. Then earth connected to the plate. Plate is always considered positive charges. Then positive negative is balanced. So earthing is needed. So Q minus Q दो प्लेट है. One of the plate is given positive charge and the other plate is connected to earth. So first plate means positive charge, second negative, or other is minus Q connected earth. So positive connected to the earth is negative, so positive negative balance. Then earthing connection. So घर में आप देख रहे होगे बहुत सारे, और आपके घर में भी अर्थिंग कनेक्शन है. अर्थिंग कनेक्शन का मतलब ये है कि जो सारे घर का अंदर कभी करंट हो जाएगा और करंट ऑलवेज कंसिडर टू द पॉजिटिव चार्जेस, देन अर्थिंग ऑलवेज कंसिडर टू द नेगेटिव चार्जेस, देन बैलेंस. देन घर में जो करंट होगा और टोटल घर करंट हो जाएगा, वो नहीं होगा, बैलेंस हो जाएगा. इसलिए घर करंट नहीं होगा. इसलिए then the other plate is connected to the earth. Then such that the capacity of the storing charge increases. So capacity of the storing charge increases because the balance, पॉजिटिव नेगेटिव बैलेंस. देन कैपेसिटी, उसको जो कैपेसिटी है कितना चार्ज स्टोर कर सकती है, वो कितना चार्ज स्टोर कर सकती है. सो इसलिए वो जो अर्थिंग है वो तो टोटल चार्ज सरफेस का कंसिडर, वो तो टोटल चार्ज सरफेस का कंसिडर करेगा. इसलिए कितना चार्ज स्टोर कर सकते हैं उसी को आप बोलोगे कैपेसिटी. सो कैपेसिटी ऑलवेज टू बी इंक्रीजेस अर्थिंग कनेक्शन.
नाउ डिस्कस कंस्ट्रक्शन। जो था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में डिस्कस कर देती हूँ। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को जो प्रीवियस पॉइंट था, स्टेप 1 में कैपेसिटी, देन स्टेप 2 में क्या था, स्टेप 2 में प्रिंसिपल था, स्टेप 3 में कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या है, जो आप ये डायग्राम जो कर रही हो ना, इस डायग्राम में क्या क्या हो रहा है उसको थोड़ा डिस्कस करने और उसको थोड़ा एक्सप्लेन करने का तरीका को कंस्ट्रक्शन बोलते हैं। सो क्या इस डायग्राम में आप क्या कर रहे हो, सो इट कंसिस्ट ऑफ 2 पैरेलल। पहला स्टेप है 2 पैरेलल मेटल प्लेट आप कंसिडर कर रहे हो। एक तो है पॉजिटिव, दूसरा है नेगेटिव। देन 2 पैरेलल मेटल प्लेट के टू क्लोज ईच अदर। यहाँ पर डिस्टेंस बहुत ही कम है, बहुत कम, बहुत स्मॉल है, इसलिए केप टू क्लोज इधर मीन्स फेस टू फेस आइदर हैविंग वैक्यूम। यहाँ पर जो मैंने फील हो रहा है, यहाँ पर जो फील्ड जहाँ पर पॉजिटिव प्लस क्यू और माइनस क्यू के अंदर जो फील्ड है और जो फील्ड है उस क्या से क्या कुछ वैक्यूम आइदर रहेगा और कुछ डाइलेक्ट्रिक भी रहेगा। जो आप कंसिडर करना है कर लो, कोई दिक्कत नहीं। देन नाउ डिस्कस सेकेंड पॉइंट। वन ऑफ द प्लेट इज गिवन विथ प्लस क्यू चार्ज। पहला पॉइंट प्लस क्यू चार्ज। देन द अदर प्लेट इज कनेक्टेड टू अर्थ। मीन्स यहाँ पर जो नेगेटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट में जो पॉजिटिव भी कंसिडर हो रहा है और ये जो पॉजिटिव अर्थिंग में कनेक्शन हो रहा है तो वो बैलेंस हो जाते हैं। इसलिए जो दूसरा स्टेप लिखा है, दूसरा स्टेप क्या है, अदर प्लेट इज कनेक्टेड टू अर्थ, डायरेक्ट कनेक्टेड टू अर्थ, देन दैट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्रिएटेड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्रिएटेड मीन्स यहाँ पर जो डिस्टेंस देख रहे हो वो एक तरह सिमिलर डिरेक्शन मीन्स इसका डिरेक्शन यहाँ पर है, उसका भी डिरेक्शन यहाँ पर है, उसका भी डिरेक्शन यहाँ पर है, मीन्स एक सीक्वेंस और एक सीरीज फॉलो करती है, इसलिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्रिएटेड बिटवीन 2 प्लेट्स मीन्स एक्स और वाई। यहाँ पर एक्स वाई, यहाँ पर भी, और यहाँ पर जो डिस्टेंस है स्मॉल डी है, यहाँ पर जो एरिया ऑफ सेपरेशन है कैपिटल ए है, इसलिए देन अगेन रिपीटेड कंस्ट्रक्शन क्या है, कंस्ट्रक्शन मीन्स इट कंसिस्ट ऑफ द 2 पैरेलल मेटल प्लेट। 2 प्लेट कंसिडर कर रहा हूँ, एक है प्लस क्यू और एक है माइनस क्यू। माइनस क्यू बैलेंस हो जाता है कहा किसके लिए बैलेंस हो जाता है, अर्थिंग कनेक्शन है ना, अर्थिंग कनेक्शन है इसलिए बैलेंस हो जाता है। सो इसलिए देन यहाँ पर जो भी डिरेक्शन है पॉजिटिव टू नेगेटिव है और जो भी डिरेक्शन है यहाँ पर फॉलो करते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स क्या है, एक सीक्वेंस और वे और एक सीरीज में डिरेक्शन होगा। नॉन यूनिफॉर्म मीन्स डिफरेंट डिरेक्शन। डिफरेंट डिरेक्शन किसका भी डिरेक्शन सेम नहीं होगा, बट यहाँ पर जो डिरेक्शन है यहाँ पर ऑल डिरेक्शन आर सेम। सो इसलिए देन इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्रिएटेड बिटवीन 2 प्लेट्स। और जो बोथ प्लेट में जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है स्मॉल डी है और जो एरिया है वो ए है। देन डिस्कस स्टेप 4 डिराइवेशन ऑफ कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल कैपेसिटी और कैपेसिटर। डिराइवेशन ऑफ कैपेसिटी ऑफ पैरेलल कैपेसिटर को 2 स्टेप है। पहला स्टेप क्या है समझना है। पहला स्टेप है 2 प्लेट एक्स एंड वाई, जो प्रीवियस डायग्राम में कराई थी वहां पर मैं मेंशन कर रही थी एक्स और वाई 2 प्लेट है। सो 2 प्लेट एक्स एंड वाई के पैरेलल टू ईच अदर, जो था एक्स एंड वाई 2 प्लेट फेस टू फेस है इसलिए पैरेलल टू ईच अदर विथ डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। उसका डिस्टेंस कितना था, एक्स था, यहाँ पर एक्स, यहाँ पर वाई, उसका डिस्टेंस कितना था, डी था। बिटवीन देम एरिया ऑफ ईच प्लेट ए। मैं बोल रही थी जो प्रीवियस में जो पॉइंट में डिस्कस कर रहा था उसमें मैं बोल रही थी जो एरिया है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया जो है ए है। सो सरफेस का डेंसिटी ऑफ ईच प्लेट सिग्मा। सरफेस का डेंसिटी को किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हो, सिग्मा। सो सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए। क्यू मीन्स चार्ज, ए मीन्स एरिया। सो यहाँ पर यूजिंग गॉस लॉ यूज करना है। गॉस लॉ यूज करने से क्या होगा, यूजिंग गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन दीज 2 प्लेट ई इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन। सिग्मा क्या है, सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा का फॉर्मूला क्यू बाई ए है। जो नेक्स्ट स्टेप में अप्लाई होगी, सिग्मा का फॉर्मूला क्या है, देन ई इलेक्ट्रिक फील्ड है और एप्सिलॉन नॉट गॉस लॉ का फॉर्मूला आप जानते हो। गॉस लॉ का फॉर्मूला ई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। सो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन। क्यू यहाँ पर क्या है, क्यू मीन्स चार्ज है और
सिग्मा मीन्स V सरफेस चार्ज डेंसिटी है, सिग्मा V चार्ज है, इसलिए यहाँ पर सिग्मा अप्लाई हो रहा है बिकॉज यहाँ पर जो डेंसिटी, दो प्लेट का डेंसिटी देख रहे हो ना, इसलिए सिग्मा अप्लाई होती है, इसलिए सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा मीन्स ऑपरेट्स प्लस चार्ज और सरफेस चार्ज डेंसिटी बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा का फॉर्मूला Q बाई A। नाउ डिस्कस डेरिवेशन ऑफ कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का स्टेप टू क्या है, और स्टेप 1 में E इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट देख रहे थे, स्टेप 2 में क्या होगा, V इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस जो x एंड y का बीच में है, और E इक्वल टू माइनस बी बाई डी जो फॉर्मूला है, E का इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला माइनस बी बाई डी, V मीन्स पोटेंशियल, D मीन्स डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन x एंड y। सो नेगेटिव साइन इंडिकेट, यहाँ पर जो नेगेटिव साइन है वो नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, उस नेगेटिव साइन क्यों, यहाँ पर नेगेटिव साइन क्यों है, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पोटेंशियल डिक्रीजेस, मीन्स यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, नेगेटिव साइन इंडिकेट पोटेंशियल डिक्रीजेस, इलेक्ट्रिक फील्ड decreases, potential increases, then electric field increases. So V equal to E into D. So E का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, E का फॉर्मूला है इंटू डी, सिग्मा का फॉर्मूला आप लोग देख रहे थे, सिग्मा मीन्स सरफेस चार्ज डेंसिटी और सिग्मा का फॉर्मूला Q बाई A, Q मीन्स चार्ज और A मीन्स एरिया, देन पुट सिग्मा Q बाई A इंटू एप्सिलॉन इंटू डी। देन स्टेप 3 क्या है, कैपेसिटी मीन C इक्वल टू क्या है, Q बाई V। सो Q बाई V का फॉर्मूला क्या है, Q बाई A इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। सो यहाँ पर A इंटू एप्सिलॉन नॉट, Q कैंसल, देन एप्सिलॉन A बाई डी। सो फाइनल कैपेसिटी क्या है, एप्सिलॉन A बाई डी। एप्सिलॉन A मीन्स एरिया ऑफ सेपरेशन बिटवीन x एंड y एंड D मीन्स डिस्टेंस सेपरेशन बिटवीन x एंड y। सो नोट्स देखते हैं, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है। इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है, इफ द स्पेस बिटवीन जो x एंड y का बीच में जो गैप था, इफ द स्पेस बिटवीन टू प्लेट्स इज फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k, देन डिपेंड अपॉन k। यहाँ पर जो C कैपेसिटी का फॉर्मूला एप्सिलॉन A बाई डी था, तो C मीडियम का फॉर्मूला हो जाएगी K एप्सिलॉन A बाई डी। K मीन्स क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसका भी वैल्यू है वो डिपेंड करेगा। सो यहाँ पर जो A है वो कैपेसिटी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वहां पर जो D है 1 बाई डी मीन्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल A एंड C इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 बाई डी, 1 बाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल D। देन A मीन्स क्या है, A मीन्स एरिया, D मीन्स डिस्टेंस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल D, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल A। For today this much only. The other part of this chapter uploaded soon. So to catch our new videos, subscribe my channel and hit the bell icon to get notified. Thank you and keep supporting us.